Hello, students of class 8th. Today we are going to start the revision of your English book, volume 2. And in your revision, will start with the question bank. In this question bank, there are all the necessary questions which are important for your examination. And from this question answers only, you will get to choose the correct options and all the alternative types questions. Right? So learn these questions carefully and smartly. Question number 1. Why was Nicholas not going to the sands at Jagborough? Nicholas Jagborough के sands पे क्यों नहीं जा रहा था? Nicholas was not going to the sands at Jagborough because he was in disgrace. क्योंकि वो disgrace में था, उसको punishment मिली हुई थी. Who put up the frog in the basin of bread and milk? Bread और milk की basin में frog किसने डाला था? The frog had been put up there by Nicholas himself. वो Nicholas ने ही खुद ने डाला था. Why did the aunt spend a couple of hours in trivial gardening operations? आंट ने trivial gardening operations में बहुत सारे घंटे क्यों बिता दिए? Because she needed to keep a watch that Nicholas does not enter the gooseberry garden. क्योंकि उन्हें निकोलस पे नज़र रखनी थी कि वो gooseberry garden में इंटर ना हो. What was the lumber room according to Nicholas? निकोलस के लिए lumber room क्या था? तो lumber room was a storehouse of unimagined treasures. वहाँ पर कोई unimagined खजाना था, उसका एक storehouse उसे ऐसा लगता था. Why did aunt shrieked and called out to Nicholas? aunt क्यों डर के उन्होंने निकोलस की तरफ उसे बुलाया? aunt shrieked and called out to Nicholas because she had slipped into the rainwater tank. क्योंकि वो rainwater tank में गिर चुकी थी. What was the reason for the tea to be solemn affair? tea एक solemn affair मतलब कि सब लोग चुप क्यों थे टी पर? तो tea was solemn affair because the children had not been able to play on the beach. बच्चे बीच पर नहीं खेल पाए थे as there was high tide. Bobby's boot had hurt him the whole afternoon. Bobby के boot ने उसको पूरे afternoon hurt किया था. And aunt was quiet as she faced the indignity of falling into the rainwater tank. और aunt चुप थी क्योंकि वो rainwater tank में गिर गई थी, तो सब कोई चुप था. What work did Samuel Lavno did? Samuel Lavno क्या वर्क करते थे? Samuel Lavno worked as a track walker. वो एक ट्रैक वॉकर थे. What drawback did Samuel face? Samuel को क्या drawback फेस करना पड़ा? Samuel faced a drawback that he had to take the inspector's permission for everything. उसको हर किसी चीज़ के लिए इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी. How did Samuel felt about his neighbor? वो अपने नेबर के बारे में क्या सोचता था? That Vasily was hot tempered. वो ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है. Why was Vasily pale and white as chalk? Vasily फीका क्यों पड़ा हुआ था? Because he was upset after his meeting with the chief. क्योंकि वो चीफ की मीटिंग के बाद में अपसेट था. Why did Samuel ask Vasily to come back and save his scene? Samuel ने वैसिली को ऐसा क्यों कहा कि वो वापस आ जाए? Because he wanted Vasily to stop making such a big mistake. क्योंकि वो वैसिली को इतनी बड़ी मिस्टेक करने से रोकना चाहता था. What did the job of a track walker involve? ट्रैक वॉकर की जॉब में क्या क्या करना पड़ता है? A track walker need to look after or inspect the railway tracks at regular intervals. Regular intervals पे railway tracks देखते रहते हैं. He needed to examine and screw up nuts wherever required. nuts को भी screw up करना पड़ता है जहाँ पर requirement होती है. And water pipes needed to be examined. Question number 13. What was the purpose of Samuel's visit to the forest? Samuel forest क्यों जाता था? Samuel made flute out of reeds. वो reeds से flute बनाता था, बांसुरी बनाता था. और वो forest जाता था because around the marsh grew reed and hence he went to cut the stalks and bring them home to make flutes. और वो reed के पास में जाता था ताकि वो stalks खरीद सके और stalks ले सके और उनसे flutes बना सके. What does the phrase follow my nose means? Follow my nose का मतलब क्या होता है? Take action based on one's instructions. खुद के अकॉर्डिंग काम करना. What did Wangari Maathei's concern for environment grew? वंगारी माथी का कंसर्न, उनकी चिंता environment के लिए क्यों बढ़ गई? Because her parents taught her to respect the soil and its bounty. क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया था कि हमें सॉइल की, अपनी मिट्टी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी बाउंटी की भी. Why was Wangari sent to school though education was not valued for girls? Education girls के लिए वैल्यू नहीं की जाती थी, लेकिन फिर भी वंगारी को स्कूल भेजा गया. क्यों? Because she was extremely bright. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी. Why had the struggle in the daily lives for Kenyan women worsened? Kenyan women की लाइफ्स में स्ट्रगल और ज़्यादा ख़राब क्यों हो गया था? Because due to deforestation के कारण. What was being awarded to Wangari Maathei and why? वंगारी माथी को क्या अवार्ड किया गया और क्यों? वंगारी माथी was awarded Nobel Peace Prize for inspiring people to fight for their democratic rights. लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला था. एंड इंकरेजिंग वुमेन टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन. वुमेन को भी इंकरेज करने के लिए ताकि वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाएँ.
What did Wangari Maathai find when she returned to her homeland? वंगारी माथी को क्या मिला जब वो अपने होमलैंड वापस आई? When Wangari Maathai returned to Kenya from the United States, she found the Kenyan women struggling with their daily life. उन्होंने ये पाया कि कैनियन वीमेन जो थी वो अपनी डेली लाइफ के साथ बहुत स्ट्रगल कर रही थी. हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द लिसनर्स? द लिसनर्स पोएम के पोइट कौन है? वाल्टर डे ला मैरे इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द लिसनर्स. ऑन विच थॉट द पोएम द लिसनर्स इज़ बेस्ड? कौन से थॉट पे बेस्ड है द लिसनर्स पोएम? द लिसनर्स पोएम इज़ बेस्ड ऑन सुपर बींग्स के ऊपर बेस्ड है. What sense does the poem the listeners create in the mind of the reader? The listeners poem reader के mind में कौन सा sense create करती है? It creates the sense of mystery. Why does the traveler feel perplexed? Traveler जो है वो confused क्यों है? The traveler feels perplexed because he does not get an answer even when he knocks the second time. Traveler confused इसलिए क्योंकि उसे कोई आंसर नहीं मिलता है even जब वो second time दरवाजे पे knock करता है. What does the leaf fringed sill suggest about the house? Leaf fringed sill से हमें हाउस के बारे में क्या पता चलता है? It suggests that the house has long been uninhabited. मतलब कि उस हाउस में बहुत टाइम से कोई रह नहीं रहा है. The weeds and creepers have grown over the windows and doors of the house due to neglect. और neglection के कारण weeds और creepers windows और doors पर उग गए हैं. When did the narrator met the countryman? Narrator को अपनी countryman मतलब उस गाँव का इंसान कब मिला? The narrator met the countryman when he was lost in countryside. जब वो उस गाँव में उस countryside में खो गया था तब उसको countryman मिला. Why did the narrator's companion shuddered when he pointed to the house? Narrator का companion डर क्यों गया था जब उसने घर की तरफ point किया था? When the narrator pointed to the house, the companion shuddered because he was scared and nervous. वो डर गया था क्योंकि वो nervous था. Why did the old man say that they would dine in dark? Old man ने ऐसा क्यों कहा कि वो dark में dinner करेंगे? The old man said that they would dine in dark because his son's eyes were bad and he couldn't tolerate light. क्योंकि उसकी बेटी की आँखें जो थी वो ख़राब थी और वो लाइट नहीं झेल सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि वो डिनर डार्क में करेंगे. Why was the narrator invited by the old man? Narrator को old man ने invite क्यों किया था? The narrator was invited by the old man because the old man and his son wanted company. क्योंकि old man और उसके son को company चाहिए थी. What was the reason for the narrator to get lost? Narrator के पास क्या reason था कि वो खो गया था? The narrator got lost because he had gone too far and found many roads in front of him. वो बहुत दूर चला गया था और उसके आगे बहुत सारे roads थे. He was confused which route to take. और वो confuse हो गया था कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए. Why did the narrator hesitate to enter the house? Narrator घर के अंदर इंटर करने के लिए हेजिटेटेड क्यों था? क्योंकि उसको ओल्ड मैन और वुमेन बहुत एटीट्यूड में क्वेयर लग रहे थे और वहाँ पर बहुत अंधेरा भी था, तो उसको कुछ किसी भी तरीके से वो इनवाइटिंग नहीं लग रहा था. इट वॉज नॉट इनवाइटिंग एट ऑल. हु आर कॉल्ड वाइल्ड बोर्स? वाइल्ड बोर्स किसको कहा जाता था? द थाई जूनियर फुटबॉल टीम वॉज कॉल्ड वाइल्ड बोर्स. आफ्टर हुज नेम द थामलॉन्ग केव वॉज नेम्ड? थामलॉन्ग केव किसके नाम से बनी हुई है? इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ माउंटेन शेप लाइक अ रिक्लाइनिंग वुमेन. एक ऐसा माउंटेन जो वुमेन की तरीके के शेप में है. वॉट वॉज द रीज़न फॉर द बॉयज़ टू बी एबल टू सर्वाइव? बॉयज़ के लिए क्या रीज़न था कि वो सर्वाइव कर पाए? द बॉयज़ वर एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर करेज एंड डिटर्मिनेशन. क्योंकि उनके पास साहस था और उनका डिटर्मिनेशन था. वॉट वॉज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस? रेस्क्यू ऑपरेशंस का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या था? द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशंस वॉज वेरेवर एयर स्पेस वॉज फाउंड द रेस्क्यूअर्स वुड शाउट एंड स्मेल. प्रोसीजर ये था कि जब भी उन्हें हवा कहीं से आती हुई दिखेगी वो शाउट करेंगे और स्मेल करेंगे. What was the reason for the boys to venture into the forested hills after their football practice? फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद में वो हिल्स में घूमने क्यों गए थे? The boys visited the forested hills because they wanted to visit the Thamlang caves as they loved to explore the mountain range. वो थामलॉन्ग caves में जाना चाहते थे क्योंकि mountain range में explore करना उन्हें अच्छा लगता था. Why was the Thamlang caves called dangerous by the common people? Common people थामलॉन्ग caves को dangerous क्यों बोलते थे? बिकॉज पीपल हैड गॉन मिसिंग इन द केव्स, क्योंकि लोग वहाँ पर जाकर खो जाते थे ड्यूरिंग मानसून सीजन एंड इट फ्लडेड अप टू 16 फीट विच वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस. और मानसून सीजन में वो 16 फीट फ्लडेड हो जाता था जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. वाई डिड द नरेटर सेड लीव मी अलोन? नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि लीव मी अलोन? द नरेटर सेड लीव मी अलोन बिकॉज फ्रैकल्स वॉज प्रोडिंग हिम हार्ड विद द पॉइंट ऑफ द पेंसिल. क्योंकि उनका फ्रेंड फ्रैकल्स उन पेंसिल से उन्हें हार्डली पॉइंट किए जा रहा था. वॉट डज़ द ऑथर मीन बाय अ हैरी एवलेंच? हैरी
एवलिंक मतलब हैरी एवलिंक मतलब हैरी लार्ज हैरी डॉग, बहुत बड़ा और हैरी डॉग. वाई डज द ऑथर सेज दैट द फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज सर्टेनली इवेंटफुल. ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि स्कूल का फर्स्ट डे बहुत इवेंटफुल था? बिकॉज ही सॉ एन ऑटोमोबाइल इंजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. क्योंकि उसने ऑटोमोबाइल इंजन पहली बार देखा था. In the story A Boy's Life First Day at School, how the narrator has been portrayed. Narrator कैसे portray किया गया है स्टोरी में. In the story the narrator has been portrayed to be a mischievous and impulsive boy. Narrator एक शरारती बच्चा है. What were the new wonders that the author experienced on his way to school? कौन से नए wonders author अपने स्कूल में experience करता था? On his way to school the author experienced new wonders like a bird's nest which was newly made. एक बर्ड का ऐसा घोंसला जो कि नया बना हुआ है. मैगपाई which comes swooping down. मैगपाइज वहाँ पर घूमती रहती हैं. ये एक बर्ड का नाम है. bush animals and also reptiles which came out of the bushes and crossed his path. और ऐसे reptiles जो bushes में से निकल कर उसके path को cross करते हैं. well fox I have had my day. had my day what does the poet mean? had my day का मतलब poet ये कह रहा है कि he is old and retiring, कि वो old हो गया है और वो retire होने वाला है. what does the poet mean by the sentence and nobody seems to mind? इस sentence से मतलब क्या है? it means that nobody is taking notice of him. मतलब किसी को भी उनका ध्यान नहीं है. वाई इज़ द ओल्ड हॉर्स सैड? ओल्ड हॉर्स सैड क्यों है? द ओल्ड हॉर्स इज़ सैड बिकॉज द मास्टर डज नॉट राइड्स हिम एनी मोर. क्योंकि उनका मास्टर अब उसे राइड नहीं करता. वाई डज ही द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई? द ओल्ड ब्राउन हॉर्स तो इसी साई क्यों देता है? बिकॉज ही फील्स द टच ऑफ अ काइंड मैन. क्योंकि उसको काइंड मैन का टच फील होता है. वॉट एडवाइस डज द पोइट गिव टू द रीडर्स इन द लास्ट आंसर ऑफ द पोएम? पोएम के लास्ट आंसर में पोइट क्या एडवाइस करते हैं रीडर्स को? that while passing by the field stop by the old and lonely horse. जब हम फील्ड के पास में पास करें तो हम लोनली हॉर्स के पास में रुक जाएं. द हॉर्स वुड लव द टच ऑफ अ सॉफ्ट यंग हैंड. उस हॉर्स को अच्छा लगेगा जब उसके पास एक सॉफ्ट और यंग हैंड का टच आएगा. एंड ही वुड फील द काइंडनेस एंड जेस्चर्स एंड ही वुड फील हैप्पी. और वो बहुत खुश होगा और उसे नेग्लेक्टेड फील नहीं होगा. हाउ इज़ द हॉर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? हॉर्स को पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है? द हॉर्स हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड ब्राउन इन कलर. वो ओल्ड है और ब्राउन है कलर में. ही इज़ लैम. वो लंगड़ा हो चुका है और आधा अंधा है, हाफ ब्लाइंड. एंड ही लुक्स ओवर द फैंस इन अ टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड वे. और वो थक चुका है और वो फैंस के ऊपर से देख रहा है. राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. स्टूडेंट्स आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स लर्न करने हैं. एलिश मतलब सस्पेक्टेड. ट्रिवियल मतलब अनइम्पॉर्टेंट. इम्प्लीमेंटेड मतलब अप्लाइड. इंट्रूशन मतलब डिस्टर्बेंस. क्वांट मतलब ओल्ड फैशन. गो ओवर मतलब एग्जामाइन. फॉलो माई नोज मतलब टेक एक्शन बेस्ड ऑन वंस इंस्टिंक्ट. एंगेज्ड मतलब ऑक्यूपाइड. टर्नड अप मतलब अराइव्ड. टर्मोइल मतलब कन्फ्यूजन. सस्टेनिंग मतलब सपोर्टिंग. अंडरमाइन मतलब डैमेज. परप्लेक्स मतलब वेरी पजल्ड. स्मोट मतलब बैंग्ड हार्ट. हार्कनिंग मतलब लिसनिंग. प्लाइट मतलब ट्रबल. हैस्टली मतलब क्विकली. कॉशियसली मतलब केयरफुल. रैमलिंग मतलब स्प्रेडिंग इन वेरियस डायरेक्शन. हर्थ मतलब फायर साइड. रिपेंटिंग मतलब रिग्रेटिंग. इंडोमिटेबल मतलब इम्पॉसिबल टू डिफीट. डिटरेंट मतलब स्टॉप और प्रिवेंट. पैरिलस मतलब डेंजरस. हॉइस्ट मतलब रेज बाय मीन्स ऑफ रॉप्स एंड पुलिस. लॉफ्टी मतलब टॉल. ट्रेपिडेशन मतलब नर्वसनेस. सैटोरियल मतलब स्टाइलिश. सीरियट मतलब काम एंड डिग्निफाइड. इरेट मतलब एंग्री. weary मतलब tired. So this is your question bank students. Learn this question answers carefully for your final examination. All the best.